ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਤੇ ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੈਪੁਰ। ਇਹ ਜੀ ਜੈਪੁਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਕਲਰ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ 3 ਫੋਰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੈਗੜ ਫੋਰਟ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ। ਤਿੰਨੋਂ ਫੋਰਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਲਈ ਓਪਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਤੇ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਮਹਿਲ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੈਪੁਰ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੁੰਮਾ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਾਰ ਲਗਾਤੀ ਆ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ? ਮੈਗੀ। ਅੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਦਾ, ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਤੇ ਜੈਗੜ ਫੋਰਟ ਦਾ ਵਿਊ, ਨਾਲ ਆ ਲੇਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੈਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆ ਸਾਡਾ ਮੈਗੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਰਟ ਇਹ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਦਿਖਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾ ਵਾਲ ਆਫ ਅਮੇਰ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਗੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਕਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਸੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 3 ਫੋਰਟ। ਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਊ ਆ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲੈ ਉਹੀ ਆ, ਸੇ ਹਾਈ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਫੈਮਿਲੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਟਲੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿੰਡ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਟ 'ਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। आप विजिट करेंगे सर, 400 साल पुराना पैलेस है जी सर। और ये नीचे विलेज देख रहे होंगे आप, 1000 साल पुराना हिस्टोरिकल विलेज यहाँ पे बना हुआ है जी सर। इस विलेज का नाम है आमेर, और आमेर भी इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड में एक टेम्पल बना हुआ है, अमकेश्वर टेम्पल। इस टेम्पल के बेस पे जगह का नाम आमेर रखा गया था। पुराने टाइम में जयपुर को ढूंढाड़ बोलते थे। ढूंढाड़, ढूंढाड़ जैसे राजस्थान में मेवाड़ मारवाड़ होता था, ऐसे जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ होता था। ढूंढाड़ की कैपिटल ये आमेर होता था। यहाँ पे 9th सेंचुरी से पहले मीना लोगों के 16 विलेजेस होते थे। मीना एक लोकल ट्राइब पाई जाती है राजस्थान की, उन लोगों के यहाँ पे 16 विलेजेस थे जी सर, 9th सेंचुरी से पहले। 9th सेंचुरी में कछवाहा राजपूत डायनेस्टी के किंग दूल्हे राय जी, जो कि किंग थे वहाँ पे, ग्वालियर, ग्वालियर से बिलोंग करते थे, वहाँ की रॉयल फैमिली के किंग थे दूल्हे राय जी। उनकी शादी हुई थी जयपुर के पास में एक जगह है दोसा, दोसा की राजकुमारी से। दोसा उनको डाउन में मिल गया दहेज के अंदर। तो उस राजपूत किंग थे, वो इस चीज से सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने इस जगह पे अटैक करने का प्लान किया। यहाँ पे अटैक करते हैं, फर्स्ट अटैक में हार के चले जाते हैं, ये सक्सेसफुल नहीं होते। उसके बाद उनके बेटे होते हैं काकिल देव जी, वो इस जगह को सक्सेसफुली इन्वेड करते हैं, अपना एम्पायर यहाँ पे स्टेब्लिश करते हैं 9th सेंचुरी में। सर ये पैलेस 400 साल पुराना पैलेस है। अगर वो लोग 9th सेंचुरी में आए थे तो इससे पहले कहीं पे रहते थे। ये डाउन साइड में बिल्डिंग देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये फर्स्ट लिविंग रेजिडेंस होता था रॉयल फैमिली का जी। 1000 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं कदमी पैलेस। पहले यहीं पे इन्होंने स्टार्टिंग किया था अपना रेजिडेंस जी सर। तो इसको बनवाया था काकिल देव जी ने 9th सेंचुरी में,
अब राजा अगर यहाँ पे रहना है उसको आर्मी की भी जरूरत होगी जी सर। तो इसी के पैरेलल में उन्होंने फाउंडेशन रखा था काकिल देव जी ने जैकेट फोर्ट का। वो फोर्ट होता है, ये पैलेस होता है, जैकेट फोर्ट जी सर। वो फोर्ट होता है, पैलेस होता है, दोनों अलग अलग चीज होती है। पैलेस रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है और जो फोर्ट होता है डिफेंसिव बिल्डिंग होती है, आर्मी एक्टिविटीज के लिए होता है, वेपन्स आर्मी वगैरह सब कुछ फोर्ट के अंदर होता है। तो जैकेट फोर्ट उसको बोलते हैं जी सर। जैकेट फोर्ट से कनेक्टेड जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट वॉल होती है। जो आप देख रहे हैं सामने बाउंड्री वॉल, ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट वॉल है। फर्स्ट होती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड कुंभलगढ़ वॉल उदयपुर राजस्थान में 36 किलोमीटर की वॉल होती है। और ये 3rd नंबर पे आती है द डिफेंसिव वॉल ऑफ आमेर के नाम से इसको जानते हैं। 12 किलोमीटर में पूरे आमेर को सराउंड कर रही है। ये पूरा ऐसे 12 किलोमीटर में फैली है, पूरे आमेर को सराउंड करती है सर। वॉल के ऊपर आपको वॉच टावर्स भी देखने को मिलेंगे। एक वॉच टावर वो सामने आप देख सकते हैं। ऐसे टोटल 7 वॉच टावर बने हुए हैं। वॉच टावर का डिफेंसिव पर्पज से यूज करते थे। पुराने टाइम में वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था। पैलेस में कोई मैसेज पहुंचाना होता था, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती थी, वॉच टावर का यूज करते थे। दिन के टाइम में ड्रम वगैरह नंगाड़े वगैरह बजा के आवाज करते थे। रात हो जाती थी, मशाल या आग जला के पैलेस में इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती थी। पुराने टाइम का वार्निंग सिस्टम आप इसको बोल सकते हो, पुराने टाइम का डिफेंस सिस्टम भी यही कहलाता था। अभी सर हम पैलेस में चलेंगे। इसको बोलते हैं सर्वत जी, सभी लोगों के लिए जी सर। तो यहाँ पे पैलेस में एंट्रेंस के लिए आपको 2 गेट देखने को मिलता है। ये होता है सन गेट जी सर। इसके सन का डायरेक्शन है ईस्ट साइड, इसलिए इसको सन गेट या सूरज पोल गेट के नाम से जानते हैं। इसके अपोजिट में बना हुआ है, इसलिए इसको मून गेट या चांद पोल गेट के नाम से जानते हैं। ये लोकल पब्लिक का एंट्रेंस गेट होता था, ये रॉयल फैमिली का एंट्रेंस गेट होता था। और जो ग्राउंड आप देख रहे हैं सर, इसको बोलते हैं आर्मी परेड ग्राउंड। ऐसा परेड ग्राउंड आपको राजस्थान के सभी पैलेसेस में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सर हम ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स की 2 वीकनेसेस होती है, लेकिन हम पसंद करते हैं उन चीजों को। पहला, हमारी कोई तारीफ करता है हमको अच्छा लगता है। दूसरा, कोई हमको सलाम करता है हमको अच्छा लगता है। सेम राजा की भी वीकनेसेस होती थी। यहाँ पे जो आर्मी होती थी वो राजा को गार्ड ऑफ ऑनर वहां पे दी जाती थी। राजा वहां पे होता था, यहाँ से आर्मी राजा को गार्ड ऑफ ऑनर देती थी। इसलिए ये परेड ग्राउंड आपको राजस्थान के सभी पैलेसेस में ऐसा देखने को मिल जाएगा सर। तो आर्मी यहाँ पे आती थी, इसलिए इसको फोर्ट भी बोलते हैं, पैलेस भी बोलते हैं। जितने भी आप कैबिन्स देख रहे हैं डाउन साइड वाले जी सर, ये सारे घोड़ों को बांधने के लिए होते थे, स्टेबल्स। इनके ऊपर आर्मी ऑफिसर्स के अपार्टमेंट यहाँ पे बने होते थे, गार्ड्स के रूम यहाँ पे बने होते थे जी। अभी हम सर पैलेस का सेकंड पार्ट में एंटर करेंगे। 2 रास्ते यहाँ पे बने हुए हैं, एक स्टेयर्स है, दूसरा रैंप है। दोनों को बनाने का पर्पस अलग अलग था। जो जायंट्स होते थे, राजा के वीआईपीज होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, कॉमन पब्लिक होती थी, वो स्टेयर्स का यूज करती थी पैलेस में एंट्रेंस के लिए। वो जो रैंप है वो रानियों के लिए बनाया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी कैरी करती थी। 18 kg तक उनकी ज्वेलरी का वेट होता था। इतना ही हैवी उनका ड्रेसअप भी होता था सर। तो नॉर्मली उनका मूवमेंट करना इजीली पॉसिबल नहीं होता था, उनको व्हीलचेयर या पालकी के अंदर लेके चलना पड़ता था। इसलिए उनके लिए राजा ने पैलेस में जगह जगह रैंप भी बनवाया। रैंप कनेक्टेड एक टेम्पल से, यहाँ पे शिला माता का टेम्पल बना हुआ है। जो मूर्ति है राजा मान सिंह जी बंगाल से लेके आए थे। राजा मान सिंह जी सर इस पैलेस के फाउंडर थे, जिन्होंने पैलेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था बैक साइड से सर। ये सबसे न्यूएस्ट पार्ट है, सबसे न्यूएस्ट पार्ट। अभी लास्ट में ये वाला कंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिनिश हुआ था। सबसे ओल्डेस्ट पार्ट हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो राजा मान सिंह जी अकबर के सेनापति थे, अकबर के नवरत्नों में इनका नाम आता है सर। टोटल 77 बैटल किए अपने लाइफ टाइम में। एक बैटल ये हार के आए थे, आपने हल्दी घाटी बैटल का नाम सुना है, वो एक सिंगल बैटल ही हारे थे, बाकी कोई भी बैटल कभी हारे नहीं थे सर। ये काबुल तक गए थे लड़ते हुए, काबुल अफगानिस्तान उस जमाने में इंडिया का पार्ट होता था। जैसोर बंगाल तक भी बैटल करते हुए गए थे सर। तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने बैटल वगैरह करी थी। तो राजा मान सिंह जी की बैटल थी जैसोर के राजा के साथ। जैसोर एक जगह आज बांग्लादेश में आती है, पुराने टाइम में बंगाल का पार्ट थी। राजा मान सिंह जी अटैक करते हैं सर, फर्स्ट अटैक में सक्सेसफुल नहीं होते। उसके बाद माँ काली से प्रेयर करते हैं, इनसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं लड़ाई जीत जाता हूँ तो आपके लिए टेम्पल बनवाऊंगा और ह्यूमन सेक्रीफाइस स्टार्ट करवाऊंगा। बाद में लड़ाई जीतने के बाद यहाँ पे इन्होंने टेम्पल बनवाया। नीचे जो जगह देख रहे हैं फेसिंग लगा हुआ, पेड़ लगा हुआ सामने, ये ग्राउंड के ऊपर ही, इसको बोलते हैं बलि स्थल। यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता था, नर बलि यहाँ पे दी जाती थी, इंसानों की बलि। 27 साल तक डेली एक ह्यूमन सेक्रीफाइस यहाँ पे किया गया था। हाँ, बाद में इस चीज को बंद कर दिया गया। बफेलो होता है उसका सेक्रीफाइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम बाद वो भी बंद कर दिया गया। गॉड सेक्रीफाइस, बकरी का बलि स्टार्ट हुआ, जो इंदिरा गांधी के टाइम तक यहाँ पे होता था। अभी बैक साइड में एक बलिदान गेट बना और डेली आज भी एक बकरे का बलि वहाँ पे देते हैं। ये जो ऐसे गोल चक्कर हाँ, ये जो लोग बाग बैठे हैं ना, अभी भी होता है हाँ, रोज
डेली एक बकरे का बलि होता है अभी हाँ। यहाँ पे नहीं होता, अभी बैक साइड में एक बलिदान गेट बना हुआ है, वहाँ पे डेली आज पहले डेली 27 एक साल तक ह्यूमन इंसान होगा रोज एक हाँ इंसान का बलि होता है। हाँ। जो कैदी होते हैं ना सर, उनका बलि यहाँ पे होता था जी कह दिया। हाँ। फिर बाद में बफेलो का स्टार्ट हुआ कुछ टाइम बाद, फिर वो भी बंद कर दिया गया, बकरे का बलि स्टार्ट हुआ जो पहले यहीं पे होता था, अभी बैक साइड में होता है। डेली एक बकरे का बलि और एक वाइन बोतल रॉयल फैमिली की तरफ से यहाँ पे आता है मंदिर में। अभी सर हम यहाँ से टिकट लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। स्टूडेंट है सर कोई? नहीं यहाँ पे हाँ। मैंने बताया था महाकाली का टेम्पल है, जो मूर्ति है ब्लैक कलर की है, इसलिए इनको महाकाली का अवतार मानते हैं। वैसे शिल्ला माता के नाम से पूजा करते हैं इनकी। व्हाइट मार्बल का यूज करके टेम्पल बना हुआ है सर। जो गेट है वो सैंडलवुड से बना हुआ है, चंदन की लकड़ी से, उसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग की हुई है। गेट का टोटल वेट होता है 200 kg, 200 kg। गेट के एक साइड में नव दुर्गा जिनकी नवरात्रों में पूजा करते हैं उनकी पेंटिंग्स बनी हुई है। दूसरी तरफ 10 महाविद्याएं होती है सर, तंत्र साधनाएं, कालिका माता के 10 रूप जिनको बोलते हैं, उनकी पेंटिंग्स बनी हुई है। आपने कभी कोरल स्टोन देखा है? कोरल मैंने देखा। कितना बड़ा पीस देखा है कितना? जी। यहाँ पे ऊपर गणेश जी का स्टेचू देख रहे हैं, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल पीस ऑफ कोरल स्टोन है दुनिया का। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस यहाँ पे लगा हुआ कोरल स्टोन का जी। सर इसको लायन गेट बोलते हैं, सिंह पोल जी सर, क्योंकि पावर को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे राजा को गार्ड ऑफ ऑनर देते थे। आइए मैंने आपको जो वॉल दिखाई थी, आप देख सकते हैं पूरे आमेर को सराउंड कर दिए, वही वॉल है। वो सामने जैकेट फोर्ट है, वहां से स्टार्ट होती है जी, 12 किलोमीटर में फैली हुई है। अभी हम सर पैलेस के सेकंड पार्ट में है जी। इसको बोलते हैं सर्वतोभद्रा, यानी सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए सर। आम जनता का दरबार यहाँ पे राजा का लगता था। उर्दू में आप बोल सकते हो दीवाने आम, इंग्लिश में बोल सकते हो पब्लिक ऑडियंस हॉल, कॉमन पब्लिक ऑडियंस हॉल। तो यहाँ पे राजा की कॉमन पब्लिक से मीटिंग होती थी। नीचे यहाँ पे ग्राउंड पे सामने कॉमन पब्लिक बैठती थी, राजा अपने मिनिस्टर्स के साथ ऑडिटोरियम के अंदर बैठता था सर। टोटल 48 पिलर्स के ऊपर पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है। 48 पिलर्स का यूज किया गया पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए सर। जितने भी पिलर्स आप देख रहे हैं सारे सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बने हुए, कोई कटिया ज्वाइंट वगैरह आपको बीच में देखने को नहीं मिलेगा सर। आप देख रहे हैं सर इनर साइड में 16 पिलर्स बने हुए व्हाइट मार्बल का यूज करके। मुगलों के आने से पहले व्हाइट मार्बल का यूज किया हुआ टेम्पल बनाने के लिए करते थे। मुगल आए, उन्होंने अपने पैलेस में भी व्हाइट मार्बल का यूज स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो राजपूत किंग होते थे उन्होंने भी अपने पैलेस में व्हाइट मार्बल का यूज स्टार्ट कर दिया। लेकिन केवल राजा ही होता था जो व्हाइट मार्बल का यूज करता था। किसी मिनिस्टर्स को या अदर पर्सन को व्हाइट मार्बल का यूज करना अलाउ नहीं होता था। तो यहाँ पे सेंटर में राजा बैठता था, इसलिए सेंटर वाले 16 पिलर्स बने हुए व्हाइट मार्बल का यूज करके। यहाँ पे राजा के रिप्रेजेंटेटिव जो मिनिस्टर्स होते थे राजा के, वो यहाँ पे बैठते थे। इसलिए आउटसाइड में आप देखोगे 32 पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का यूज करके सर। अपर साइड में आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा, देखिए एलिफेंट, उसके ट्रंक्स में आपको लोटस का फ्लावर देखने को मिलेगा। ये हिंदू आर्किटेक्चर होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स होती है सर, ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब कुछ लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो सब हिंदू आर्किटेक्चर होता है। डाउन साइड में आपको नॉन लिविंग थिंग्स पर्शियन आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्लावर्स, लीफ, डॉम लाइक स्ट्रक्चर, आर्चेस वगैरह, ये सब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो ये पर्शियन आर्किटेक्चर डाउन साइड में फॉलो किया गया। यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे, इसलिए अपने आर्किटेक्चर को टॉप में रखा। सेकेंडरी आर्किटेक्चर जो यहाँ पे फॉलो किया गया पर्शियन आर्किटेक्चर, वो डाउन साइड में रखा गया। पुराने टाइम में जयपुर एरिया 27 छोटे छोटे एरिया के अंदर डिवाइडेड था। हर एक एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स होता था, वो यहाँ पे बैठता था। तो यहाँ पे 27 ब्लॉक बने हुए सर, 9 ब्लॉक ऐसे बने हुए, 3 ब्लॉक ऐसे बने हुए वर्टिकली सर। 9 × 3 27, तो 27 ऑफिसर्स यहाँ पे बने हुए। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स बैठते थे। उन विलेज के, उनके एरिया का जो भी टैक्स कलेक्शन या डॉक्यूमेंटेशन टाइप का भी वर्क होता था, वो सारा यहाँ पे किया जाता था। इसलिए इसको 27 कचहरी के नाम से जानते हैं, 27 कोर्ट्स। यहाँ से आप डाउन साइड का व्यू भी देख सकते हैं सर। आइए, इसका ओरिजिनल नाम है मोहन बाड़ी। मोहन नाम के आर्टिजन ने इसको बनाया था सर। राजा जयसिंह जी की 2 रानियां हुआ करती थी, उनकी स्पेशल डिमांड थी हमारे लिए सैफरन उगाया जाए। सैफरन के फ्लावर्स का यूज करके परफ्यूम बनवाना चाहती थी। जयपुर आज भी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे केमिकल फ्री, अल्कोहल फ्री ऑर्गेनिक परफ्यूम बनाए जाते हैं। आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी ऑर्गेनिक परफ्यूम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आज भी बनाए जाते हैं जी सर। राजा जयसिंह ने यहाँ पे सैफरन उगाने का ट्राई किया था। सैफरन उगाना राजस्थान में पॉसिबल नहीं था, इसके लिए कश्मीर जैसी जगह चाहिए होती है। राजस्थान का क्लाइमेट होता है हॉट जी सर, तो यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो राजा ने यहाँ पे ट्राई किया, स्पेशल कश्मीर से सॉइल मंगवाई, सीड्स मंगवाए, आर्टिफिशियल टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए
गार्डन को पानी के बीच में बनवाया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, नेचर के अगेंस्ट हो जाता है ये। ऐसा कुछ राजस्थान में आज भी पॉसिबल नहीं है, जी सर। लेकिन यहाँ पे ट्राई किया गया, इसलिए इसको सैफरन गार्डन बोलते हैं। ये नीचे जो लेक आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मावठा। राजस्थान में सर्दियों में जो बारिश होती है उसको मावठा बोलते हैं। ये बारिश का ही पानी इकट्ठा होता है इस लेक के अंदर, इसलिए इसको मावठा लेक के नाम से जानते हैं। ये नीचे जो रास्ता जा रहा है सर, इधर सन गेट की तरफ जाता है, जो अभी हम नीचे देख के आते हैं, इधर जैकेट फोर्ट की तरफ जाता है। ये पुराना रास्ता है, इस पैलेस को कनेक्ट करता था जैकेट फोर्ट से। तो रॉयल फैमिली को कभी जैकेट फोर्ट जाना होता था, इसी रास्ते का यूज करके एलिफेंट राइडिंग करते हुए जाते थे। इसीलिए राजस्थान का यही पैलेस है जहाँ पे आपको आज भी एडवेंचर टूरिज्म में एलिफेंट राइडिंग देखना मिल जाएगी। 11-12 बजे तक अगर आप पैलेस में एंटर करते हो, इधर से एलिफेंट राइडिंग करते हुए इधर से एंटर कर सकते हो। उसके बाद अगर किसी को एलिफेंट राइडिंग करनी हो, यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर एशिया का सबसे बड़ा एलिफेंट विलेज बना हुआ है। वहाँ पे जाके आप किसी भी टाइम एलिफेंट राइडिंग, फीडिंग, क्लाइंबिंग, पेंटिंग, जो भी एक्टिविटीज करना चाहें कर सकते हैं। बैक साइड वाला ये वाला पोर्शन है, सामने किचन एरिया होता था, यहाँ पे खाना बनता था। ऊपर जो विंडोज देख रहे हैं उसके बैक साइड वाला पोर्शन डाइनिंग हॉल होता था। जी सर, जो कॉमन पब्लिक होती थी उसको अपना काम फिनिश करके वापस लाइन गेट से नीचे भेज देते थे। उनको आगे जाना अलाउ नहीं होता था। इस गेट के आगे रॉयल फैमिली का रेजिडेंस यहाँ से स्टार्ट होता था। इस गेट के आगे केवल राजा ही राजा से मिलता था। कोई दूसरी देश का या दूसरी जगह का राजा इस गेट से आगे उसी को अलाउ होता था। जी, तो पैलेस का सबसे इंपॉर्टेंट गेट है, सबसे खूबसूरत गेट भी है। वर्ल्ड के टॉप 5 एक्सपेंसिव गेट के अंदर इसका नाम आता है सर। एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि 400 साल 500 साल पीछे जाओगे, आपको पेंटिंग्स का वर्क कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। उस जमाने में स्टोन कार्विंग की जाती थी, एक स्टोन के ऊपर दूसरे स्टोन की कार्विंग की जाती थी। ये मिर्जा राजा जयसिंह जी ने यहाँ पे फर्स्ट पेंट करवाया था ऑर्गेनिक कलर्स का यूज करके। फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स का यूज करके डाई तैयार की जाती थी, उनके अंदर गोंद वगैरह मिला के यहाँ पे पेंट किया जाता था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कलर्स बन के आता है। आज 400 साल में कभी रेनोवेशन का वर्क इसके ऊपर नहीं किया गया। ये ओरिजिनल कलर्स आज भी आपको देखने को मिलेगा। और जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स या मीनाकारी। अभी मैंने आपको जो नीचे विलेज दिखाया था वहाँ पे 80% पॉपुलेशन आज भी मीना लोगों की है। वो लोग ये डिजाइन वगैरह तैयार करते थे। इसकी खास बात क्या है सर, दोनों तरफ आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस पेंटिंग्स पे इधर जो पेंटिंग्स बनी हुई है सेम आपको इस पोर्शन में भी देखने को मिलेगी। बिना किसी टूल्स इसको बना पाना इम्पॉसिबल था। आपने कभी ब्लॉक पेंटिंग का नाम सुना है? सुना है? देखा है कभी ब्लॉक पेंटिंग्स होते हुए? जी सर, जयपुर वर्ल्ड फेमस है ब्लॉक पेंटिंग्स के लिए। गिनीज बुक जयपुर का नाम आता है। जी सर, आपको ब्लॉक पेंटिंग्स जगह जगह देखने को मिल जाएगी आप। जी, लेकिन जो ओरिजिन है स्टार्ट हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, इस जगह से। जी सर, इसलिए जयपुर वर्ल्ड फेमस है आज भी ब्लॉक पेंटिंग्स के लिए। आज भी यहाँ पे ब्लॉक पेंटिंग्स की जाती है। तो ब्लॉक पेंटिंग की हेल्प से इसको बनाया गया था। उसी का जो जयपुर है इंडिया की सेकंड रिचेस्ट सिटी कहलाती है। फर्स्ट मुंबई होता है, सेकंड जयपुर होता है। उसका रीजन है सर, मैंने बताया था राजा मानसिंह जी काफी फेमस राजा हुए हैं, अकबर के सेनापति थे। उन्होंने टोटल 77 बैटल की थी। काफी इंटेलिजेंट राजा थे सर। जहां भी बैटल करने जाते थे वहां से ब्रिलियंट इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, आर्टिजन्स सर उनको लेके आते थे। इस रीजन में उनको जगह देते थे। तो वो लोग उस जमाने में जो काम करते थे सेम आज जनरेशन टू जनरेशन, डायनेस्टी टू डायनेस्टी वही काम करते हैं सर। उस रीजन के कारण आज भी यहाँ पे 4 ऐसे बिजनेसेस है जो हम लोग डायनेस्टी टू डायनेस्टी, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस करते हैं यहाँ पे। नीचे पानी स्टोर किया हुआ है, अभी भी पानी भरा हुआ है, अभी भी इस पानी का यूज करते हैं। ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं सर ऊपर, ये वाली पेंटिंग्स यहाँ से देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। इस पेंटिंग को सामने जाके देखना। गोल्डन कलर साइन करता हुआ दिख रहा है सर। ये जो गोल्डन कलर आप देख रहे हैं 24 कैरेट लिक्विड गोल्ड यहाँ पे यूज किया गया पेंटिंग बनाने के लिए, फ्रेस्को पेंटिंग्स बनाने के लिए। वो जो सर ये पैलेस का थर्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं सुख निवास। सुख से रहने के लिए जगह को बनाया गया था। इंग्लिश में रॉयल रेजिडेंस और उर्दू में दीवानी खास। जी सर, यहाँ पे राजा जयसिंह जी का रेजिडेंस होता था। जी, इनको मिर्जा राजा जयसिंह कहा जाता है। मिर्जा एक टाइटल होता है जो शाहजहां ने दिया था। शाहजहां जानते हैं? मुगल बादशाह शाहजहां ने इनको टाइटल दिया था मिर्जा। मिर्जा का मतलब होता है ए मैन हु लव रिच थिंग्स। इसको महंगी चीजों का, कीमती चीजों का शौक हो, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक हो, उसको मिर्जा कहा जाता है। सर, तो मिर्जा टाइटल इनको दिया था। मिर्जा राजा जयसिंह जी के नाम से फेमस थे। उनका रेजिडेंस यहाँ पे होता था। ये पैलेस की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं शीश महल, मिरर पैलेस, ग्लास पैलेस। राजा जयसिंह जी ने इसको बनवाया था, इसलिए इसको जस मंदिर, जय निवास भी बोलते हैं। 400 साल 500 साल पीछे जाओगे सर, उस जमाने में घर को भी मंदिर ही माना जाता था। इसलिए यहाँ पे बिल्डिंग्स के नेम के अंदर आपको मंदिर शब्द भी देखने को मिलेगा। तो इसको विंटर पैलेस भी बोलते हैं सर, क्योंकि विंटर के सीजन में रेजिडेंस के लिए इसका यूज करते थे। विंटर में यूज करना होता था इसको ऐसे ओपन नहीं देख सकते थे। ऊपर देखिए हुक लगे हुए हैं यहाँ पे सभी जगह पे। यहाँ पे मैंने आपको जयपुर क्विल्ट बताई थी सर, 100 ग्राम क्विल्ट।
वो यहाँ पे एज ए कर्टेन्स यूज करते थे विंटर सीजन में, लेकिन पर्दे की तरह सर। लेकिन राजा इसको हर वेदर के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता था इस बिल्डिंग को। समर सीजन में आता था इसको समर पैलेस में कन्वर्ट कर लेता था, विंटर में विंटर पैलेस। ऊपर एक फाउंडेशन बना हुआ है सर, देखिए उसमें होल देखने को मिलेगा आपको, ऊपर एक होल बना हुआ है सर। इसमें कॉपर का पाइप फिट करते थे जो ऊपर पानी के टैंक से कनेक्टेड था। डॉम है ऊपर, उसके अंदर पानी का टैंक है सर, तो वहां से कनेक्टेड होता था। तो गर्मियों का सीजन आता था, पाइप के ऊपर छोटे छोटे होल किए हुए होते थे, ऊपर से पानी नीचे गिरता रहता था। यहाँ पे खस के पर्दे यहाँ पे लगा देते थे सर, तो जब पानी ऊपर से गिरता था पर्दे वेट हो जाते थे, गीले हो जाते थे। जब एयर पास होती थी अंदर, कूलर इसी की तरह कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता था। तो राजा लोग इसको समर में समर पैलेस, विंटर में विंटर पैलेस बनवा लेते थे। लेकिन रानियां थोड़ी डिमांडिंग होती थी, उनके लिए हर वेदर के अकॉर्डिंग अलग बिल्डिंग बनाई गई है। ये रानियों के लिए विंटर पैलेस होता था सर, इसके जस्ट ऊपर रानियों के लिए समर पैलेस भी बनाया गया है, और वो सामने मॉनसून पैलेस रानियों के लिए बनाया गया है। तो हर वेदर के अकॉर्डिंग रानियों के लिए अलग बिल्डिंग बनाई गई है। राजा हर वेदर में एक ही जगह पे रहता था जी सर। 2 रानियां होती थी राजा जय सिंह जी की। एक रानी का अपार्टमेंट वो सामने गेट है, वहां से स्टार्ट होता है, ये पूरा एक रानी का अपार्टमेंट है जी सर। ऐसा का ऐसा अपार्टमेंट उस साइड में बना हुआ है दूसरी रानी के लिए। दोनों रानियों की डिमांड थी सर, हमको विंटर में भी सोते वक्त स्टार्स देखने हैं। विंटर में आप नाइट स्काई के नीचे, खुले आसमान के नीचे नहीं सो सकते, तो राजा ने मिरर्स और ग्लास का यूज करके बिल्डिंग बनवाई सर। देखेंगे पुराने टाइम में यहाँ पे ऑयल लैंप जलाए जाते थे सैकड़ों की संख्या में, उसका रिफ्लेक्शन ऊपर दिखाई देता था मिरर्स में, लाइक बिलियंस ऑफ स्टार्स यहाँ पे शाइन करते हुए दिखाई देते थे। जिससे नाइट स्काई में तारे टिमटिमाते हुए देखते हो, वैसा कुछ नजारा यहाँ पे देखने मिलता था। 400 साल पहले कर्व्ड मिरर इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता था जी सर। जब मिर्जा राजा जय सिंह जी ने ये डिमांड रखी अपने आर्टिजन्स के सामने, अपने इंजीनियर्स के सामने, कि मेरे को मिरर पैलेस बनवाना है, तो प्रॉब्लम यही आई थी कि इंडिया में मिरर मैन्युफैक्चर नहीं होता था। तो इन्होंने मालूम किया जी सर, उन्होंने ऑर्डर दिया राजा जय सिंह जी ने कि मालूम करो कहाँ का मिरर फेमस होता है। 3 जगह से इनके पास कोटेशन आए थे, इटली, ईरान और बेल्जियम, तीनों जगह का मिरर फेमस होता है सर। बाद में इन्होंने ऑर्डर दिया कि जहाँ से सबसे महंगा मिरर आता है, क्योंकि तीनों जगह का मिरर बेस्ट होता है, तो इन्होंने कंफ्यूज हो गए। बाद में इन्होंने ऑर्डर दिया जहाँ से सबसे महंगा मिरर आता है वहां से मिरर लेके आओ जी सर। फिर बेल्जियम से मिरर लाके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। बेल्जियम का मिरर यहाँ पे यूज करके शीश महल बनाया हुआ है। आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, देख रहे हैं। अभी दिन का टाइम है सर, इसलिए इफेक्ट कम देखने को मिल रहा है जी। अगर आप नाइट में यहाँ पे आओगे, बहुत ब्यूटीफुल नजारा देखने को मिलता है जी सर। तो पुराने टाइम में दीपक जलते थे, दीपक की रोशनी होती है हल्की येलो रेडिश कलर की, ये तो फिर भी व्हाइट रोशनी है, और दीपक की रोशनी हिलती डुलती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। तो ओरिजिनल तारे टिमटिमाते हुए, जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वैसा नजारा यहाँ पे दिखाई देता था जी। ये अंदर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं सर, राजा जय सिंह जी थे, उनका रेजिडेंस यहाँ पे होता था सर। राजा जय सिंह जी अपनी पर्सनल मीटिंग्स यहाँ पे होल्ड करते थे, कोई भी खास मीटिंग लेनी होती थी इस पोर्शन में लेते थे। यहाँ पे जितना भी आप कलरफुल ग्लास देख रहे हैं, ओरिजिनल जेमस्टोन्स का भी यूज किया गया है, स्टैंड ग्लास का भी यूज किया गया है सर। यहाँ पे गेट के डाउन साइड में आपको ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए बॉर्डर पे ब्राउन कलर शाइन कर रहा है, जहाँ पे भी आपको ब्राउन कलर दे रहा है सर, ये 24 कलर लिक्विड गोल्ड यहाँ पे यूज किया गया सभी जगह पे। तो ये भी रानियों के लिए बनाया गया था। आइए सर, पोर्शन के कारण इसको सुख मंदिर भी बोलते हैं, मॉनसून पैलेस भी बोलते हैं। सामने जो रैंप है वो ऊपर वाटर टैंक से कनेक्टेड होता था जी सर। लिमिटेड अमाउंट पे वहां से वाटर फिल किया जाता था। यहाँ पे वाटरफॉल की तरह पानी नीचे गिरता था, झरने की तरह। एक झरोका देखने बाहर से फ्रेश एयर आती थी। एयर जब वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, आपने देखा होगा मानसून सीजन में ठंडी एयर आती है, वैसी एयर यहाँ से आती थी। यहाँ पे कर्टन सप्लाई करते थे, कर्टन के ऊपर जो भी रानी यहाँ बैठती थी उसका सिग्नेचर परफ्यूम यहाँ पे ऐड किया जाता था। यहाँ पे बैक साइड से ठंडी एयर आती थी, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस यहाँ पे ऐड हो जाती थी। यहाँ पे रानी का झूला लगाया जाता था, ऊपर हुक लगे हुए दिख सकते हैं सर। तो रानी यहाँ पे झूला झूलती थी, बैक साइड से ठंडी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आती थी। रानी के पांव होते थे वाटरफॉल के पानी में, क्योंकि यहाँ से पानी बह के आता था। जिगजैग पैटर्न बने हुए, उसके कारण देखने में ऐसा लगता था जैसे फिश स्विम करके अपर साइड में जा रही है। ओरिजिनल वाटरफॉल का लुक यहाँ पे देखने मिलता था जी सर। आज भी किसी हिल स्टेशन पे आप जाते हैं, वाटरफॉल के पानी में पाँव डाल के देखते हैं, बहुत सुकून का एहसास होता है। वो सब कुछ रानियां यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकती है। टनल है जी, ये जैकेट फोर्ट में ओपन होती है। तो इस पैलेस में 2 जगह पे ओपन होती है टनल। एक ही टनल है जो जैकेट किले तक जाती है, लेकिन इस पैलेस में 2 रास्ते हैं उसके, उस टनल में जाने के। एक यहाँ पे, एक एग्जिट पे है। एग्जिट वाला ओपन भी होता है, हाँ हाँ, एग्जिट वाला ओपन भी रहता है, आप थोड़ी दूर जाके देख के भी आ सकते हो। जो आपने पहले बताया था वो ऊपर वाला, हाँ हाँ, उस वाले, हाँ 1.5 से 2 किलोमीटर लेंथ है टनल की। ये इमरजेंसी के लिए यूज करते थे, रॉयल फैमिली को सेफ्टी एस्केप करने के लिए सर। ये सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे, ये बैक साइड है पैलेस का, तो इधर ये सारे सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे जी सर। आप देख सकते हो उसका ऊपर छत वगैरह का डिजाइन ऐसे बनाया गया पानी को स्टोर करने के लिए। जो ऐसे रैंप वगैरह भी बने हुए देखिए, पानी को वेस्ट नहीं जाने देते थे। पूरा डिजाइन ऐसे बनाया गया है जी, अभी बारिश होगी, बारिश के एक एक बूंद को स्टोर किया जा सके।
और फिर नीचे मान सिंह महल में भी एक टैंक बना हुआ है, उसके नीचे स्टोर होता था, और एक दीवाने आम में जो हमने पानी का टैंक देखा था उनमें स्टोर होता था। ये अलग प्लॉट है। ये पैलेस का सबसे पुराना पार्ट है सर, यहीं से पैलेस बनना स्टार्ट हुआ था जी सर, सबसे पहले ये वाला पोर्शन बना था, तो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है सबसे पुराना। तो ये राजा मान सिंह जी का रेजिडेंस होता था सर, इसको मान सिंह पैलेस बोलते हैं, जनानी जोड़ी, मान सिंह पैलेस और जनानी जोड़ी। जनानी जोड़ी का मतलब होता है लेडीज अपार्टमेंट सर। तो इधर ऊपर सामने अभी हम चलेंगे, राजा मान सिंह जी का पर्सनल अपार्टमेंट इधर बना होता था, पर्सनल सर। वो राजा मान सिंह जी की 12 रानियां होती थी, 12 रानियों के लिए सेपरेट 12 अपार्टमेंट यहाँ पे बने हुए हैं। एक डायरेक्शन में ऐसे देखिए 3 अपार्टमेंट बने हुए हैं, 1 2 और 3। ये आपको ओपन दिखाई दे रहा है, ये तो गार्डन है सर। ऐसे अंदर हॉल भी बने हुए हैं, रूम भी बने हुए हैं जी, जैसे आप देख रहे हैं अंदर रूम बने हुए हैं उधर, ऐसे ही। तो 3 अपार्टमेंट ऐसे बने हुए हैं सर, देखिए 3 अपार्टमेंट वैसे बने हुए उस डायरेक्शन में, 3 अपार्टमेंट सामने बने हुए हैं, 3 अपार्टमेंट इधर, चारों डायरेक्शन में 3-3 अपार्टमेंट बने हुए। 12 रानी के लिए सेपरेट 12 अपार्टमेंट यहाँ पे बने हुए सर। तो नीचे रानियों के अपार्टमेंट बने हुए, इस साइड में जो अपार्टमेंट देख रहे हैं ये ऊपर रानियों की सर्वेंट्स होती थी, दासियां, उनके अपार्टमेंट ऊपर सर, यहाँ ऊपर ये वाले बीच वाले। ऊपर जो वॉल है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ज्यादा हाइट पे बनाई गई है क्योंकि जैकेट फोर्ट है सामने सर, वहां से यहाँ की एक्टिविटीज ना विजिबल हो, इसलिए इस वॉल को ज्यादा हाइट पे बनाया गया क्योंकि रानी के अपार्टमेंट यहाँ पे होते थे जी। और जो सेंटर वाला पेवेलियन आप देख रहे हैं 12 रानी के लिए कॉमन यूज करने के लिए होता था। 12 रानी को सबको अलग अलग रखा गया ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो रानी के बीच में, इसलिए सबको अलग अलग रखा जाता था। अगर साथ मिलना हो उसको तो रानी को वहां पे मिलती थी, वो वाला पोर्शन कॉमन यूज करने के लिए होता था, उसको बोलते हैं बारहदरी। 12 रानी के लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी उस जगह का यूज करते थे, जो भी एक्टिविटीज करते थे लाइक पपेट शो, डांस एक्टिविटीज, लाइव परफॉर्मेंस वगैरह, वो वहां पे की जाती थी। रानियां यहीं से देखती थी जहां से आप देख रहे हैं। तो 2 टावर ऐसे यहाँ पे बने हुए देखिए, एक वो सामने, एक ये, और 2 सामने बने हुए हैं, 2 इधर बने हुए हैं। एक टावर में 2 रानियां रहती थी। यहाँ से अभी हम देख रहे हैं थिएटर में जैसे जैसे बैठ के मूवी देखते हैं वैसा व्यू देखने मिलता है। तो आप बोल सकते हो नीचे वाला पोर्शन रानियों के लिए कॉमन थिएटर होता था। नीचे विलेज में किसी लेडीज को कोई प्रॉब्लम होती थी, उसकी सुनवाई भी सबसे बड़ी रानी यहाँ पे करती थी। तो ये कॉमन पर्पस के लिए होता था 12 रानी के लिए, इसलिए इसको 12 दरी बोलते हैं। आपने जोधा अकबर मूवी के अंदर देखा होगा सर, ऋतिक रोशन आमिर पैलेस में जो एक सीन शूट किया गया यहाँ पे, क्या नाम, वो ऋतिक रोशन वो रेस्टोरेंट तलवारबाजी करता है ना, वो सीन यहाँ पे शूट किया गया था। रास्ता ऐसा बना हुआ है सर, राजा को जिससे मिलना होता था उसी से मिलता था, बाकी की 11 रानी को पता नहीं चलता था राजा मान सिंह जी किस अपार्टमेंट में, ये वाला पोर्शन विजिबल नहीं होता था सर। जिस रानी से राजा मान सिंह जी मिलना चाहते थे उसी से मिलते थे, बाकी की रानियों को पता नहीं होता था जी। चारों कोनों में टावर्स बने हुए देखिए, वो एक टावर उधर, एक टावर इधर, वो 2 इधर बने हुए हैं। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे गार्ड्स रखे जाते थे, जितने भी गार्ड्स होते थे सब ट्रांसजेंडर होते थे, क्योंकि इस कोर्टयार्ड के अंदर इस पोर्शन में रानियों के अपार्टमेंट बने होते थे, इसलिए किसी जेंट्स को आना अलाउ नहीं होता था यहाँ पे। राजा मान सिंह जी के अलावा यहाँ पे किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं होती थी। तो जितने भी गार्ड्स होते थे सब ट्रांसजेंडर होते थे सर। यहाँ पे पहले सैंड भी हो जाता है। इस पोर्शन को बनवाया था मानसिंह फर्स्ट ने 1592 के अंदर, 1592 के अंदर। 25 साल लगे थे इस पूरे कोर्टयार्ड को बनाने में। अभी हम जो देख के आते हैं वो मिर्जा राजा जयसिंह जी ने बनवाया था 1622 के अंदर, 1622 के अंदर। उसके आगे वाले भी 2 पोर्शन बनवाए सवाई जयसिंह ने। 2 जयसिंह हुए, जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह सेकंड, मिर्जा राजा जयसिंह और एक सवाई जयसिंह, 2 जय। सवाई जयसिंह, सवाई उपाधि होती है सर इनको, आज भी जयपुर के राजा सवाई वर्ड लगाते हैं अपने नाम में। सवाई का मतलब होता है सवा सर, एक से ज्यादा होता है ना सवा। तो औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी राजा जयसिंह जी को। वो मतलब उनका कैरेक्टर ऐसा था कि हर फील्ड में एक से बढ़ के थे, वो एक आदमी से ज्यादा ही थे, इसने उनको सवा की उपाधि दी थी, सवाई की उपाधि दी थी। तब से जयपुर के हर राजा सवाई की उपाधि लगाते हैं अपने। आज भी जयपुर के राजा है वो सवाई पद्मनाभ सिंह उनका नाम है। बैटल ये हल्दी घाटी वाला बैटल हार के आए थे, अकबर से इनका कॉन्टैक्ट होता था, तो जब भी बैटल के लिए बुलाएगा मैं आऊंगा और आई एम श्योर कि मैं हर बैटल जीतूंगा जी। और लेकिन जितना भी बैटल से जो भी लूट का गोल्ड आएगा, ट्रेजरी तिजोरी वगैरह आएगी, वो सारा मैं अपने पास रखूंगा जी। जो भी एरिया कैप्चर करूंगा वो सारा मुगलों का होगा। मुगलों को भी एरिया ही चाहिए होता था, हर एरिया के अंदर उनका फ्लैग हो, ये उनकी डिमांड होती थी। बाकी ये गोल्ड वगैरह सारा राजा मान सिंह जी रखते थे। तो ये आजादी के बाद सर फर्स्ट होते हैं हैदराबाद के निजाम, सेकंड जयपुर सर। आज वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट रॉयल फैमिली में जयपुर रॉयल फैमिली का नाम आता है। उसका रीजन यही था सर। 80% जयपुर इन्होंने, राजा मान सिंह जी सेकंड हुए हैं अभी आजादी के बाद,
उन्होंने 80% जयपुर डोनेट कर दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सर केवल जैसे ये पैलेस है, गवर्नमेंट ने लीज पे ले लिया, केवल एक सिटी पैलेस जैकेट फोर्ट आज भी जयपुर रॉयल फैमिली के अंडर में है सर, और कुछ जयपुर का एरिया भी। तो 80% जयपुर इन्होंने देश बनाने के लिए जब 556 रियासतें डोनेट की थी, सबसे पहला कदम उठाया था मान सिंह जी ने, इन्हीं ने सबसे पहले डोनेट किया था। इसके बाद अलग राजाओं ने और राजाओं ने भी डोनेट किया था अपनी अपनी रियासतों को। तो ये राजा मान सिंह जी सेकंड ने किया था जी सर। मान सिंह फर्स्ट मैं बताया था सर, उनके कारण काफी रिचेस्ट रॉयल फैमिली कहती है। आपने एक घटना के बारे में सुना होगा सर, 1975 की बात है, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब यहाँ की राजमाता हुआ करती थी, लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर राजमाता गायत्री देवी, जो कि वर्ल्ड फेमस थी, वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हुआ करती थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए थी बीजेपी की तरफ से, पॉलिटिकली पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी। अभी 2009 में उनकी डेथ हुई है सर। इंदिरा गांधी की गायत्री देवी से कभी नहीं बनती थी, उसका रीजन था दोनों सेम कॉलेज में पढ़ी थी, लंदन के कॉलेज में स्टडी की थी दोनों ने, एक ही क्लासमेट्स थी। इंदिरा गांधी जेलस फील करती थी उनकी खूबसूरती को लेकर, उसका फायदा उसने इमरजेंसी में उठाया, राजमाता गायत्री देवी को अरेस्ट कर लिया दिल्ली के अंदर, जयपुर रॉयल फैमिली को हाउस अरेस्ट कर लिया। उसको कहीं से खबर मिली कि जैकेट फोर्ट में खजाना छिपाया हुआ है सर, तो उसने जो जैकेट किला है उसके अंदर माइनिंग करवाई, रॉयल फैमिली को अरेस्ट करके 2.5-3 महीने तक काम चला। उसके बाद उसने स्टेटमेंट दिया, मेरे को केवल 62 किलो चांदी मिली है। लेकिन आज भी यहाँ पे लोकल पब्लिक होती है, वो कंफर्म करती है इस चीज को। राजमाता गायत्री देवी ने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ए प्रिंसेस रिमेम्बरेंस, उसके अंदर भी इस चीज को क्लियरली मेंशन किया गया है। जो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे है सर, इसको कर्फ्यू लगा के लोकल पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। वो 20 से 30 के बीच में गोल्ड के ट्रक्स इंदिरा गांधी यहाँ से लेके गई थी, इस किले से, सामने वाले किले से इतना गोल्ड यहाँ से निकला था। अब उस गोल्ड का क्या यूज किया गया, कहाँ ले जाया गया, कोई गवर्नमेंट टिकट अवेलेबल नहीं है। इमरजेंसी में उन्होंने बहुत लोगों को मरवा भी दिया था इंदिरा गांधी ने, जितने भी गार्ड थे, ट्रक वगैरह थे, 20-30 ट्रक थे, ऐसे बोलते हैं 29 बड़े बड़े बॉक्स लेके गए थे यहाँ से, तो 29 ट्रक भर के गए थे। पतली कमरिया बोले गाए गाए, तीरी सी नजरिया बोले गाए गाए, पतली कमरिया बोले गाए गाए, तीरी सी नजरिया बोले गाए गाए। मूवी के अंदर वो सीन यहाँ पे शूट किया गया था, तो बर्तन शूटिंग वाले लेके आए थे, यहीं छोड़ के चले गए थे, ये ओरिजिनल नहीं है। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਪਾਰਟ 2। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਲ ਮਹਿਲ, ਦਾ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਜੈਪੁਰ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।